حیثیت کے اعتبار سے ممتاز ہے، کرامت کے اعتبار سے ممتاز ہے، بلکہ سچ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان کو پیدا فرمایا یا صبح قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے انسان کی شکل میں، سبوں کے اعمال، سبوں کے کردار، سبوں کے گفتار اپنے اپنے طریقے پر ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا، وہی کامراں ہوگا، وہی سرخرو ہوگا جس نے دنیا میں اچھا عمل کیا ہوگا۔ قیامت کے دن چہرہ مسکراتا ہوگا۔ ایک بندہ جو دنیا میں آتا ہے اپنے اعتبار سے وہ عمل کرتا ہے، مرنے کے بعد زیر زمین وہ بھی جاتا ہے۔ جو اچھے عمل سے اپنی زندگی کو سجاتا ہے زیر زمین وہ بھی دفن ہوتا ہے۔ ایک وہ بندہ تھا جس نے اپنے روح کی بات کو مان کر اس نے نہ صرف یہ کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کیا بلکہ تمام تر حقوق کو ادا کیا، حقوق شرعیہ کو بھی ادا کیا، حقوق العباد کو بھی ادا کیا، نمازوں کی پابندی بھی کیا، وقت پہ زکوٰۃ بھی ادا کیا، صدقات و خیرات بھی کیا، نوافل کی کثرت بھی کیا، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل بھی کیا، اور پھر وہ بھی زیر زمین گیا۔ ایک وہ بندہ جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے نفس کی بات مان کر دنیا میں وہ بہکا، بدعمالیوں میں مبتلا ہوا، بدعمالیوں میں مبتلا ہو کر اس نے نمازوں کو چھوڑا ہے، وقت پہ زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا ہے، اپنے حقوق کو ادا نہ کیا، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کیا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہ کیا، زمین پہ جب تک چلتا رہا، دنیا میں جب تک رہا وہ اپنے طریقے سے عمل کیا، لیکن ایک دن آیا زیر زمین وہ بھی دفن ہوا۔ زمین کے نیچے جب گیا ہے زمین نے اپنا کام کیا، مٹی نے اپنا کمال دکھایا۔ مٹی کا اپنا کمال دکھانا تھا کہ بڑے بڑے مالکان دولت، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے دولت مند جب زیر زمین گئے ہیں تو یقیناً زمین نے اپنا جب کمال دکھایا ہے اس کی ہڈیاں تہوبالا ہو گئی ہے، جسم اس کا ڈیمیج ہو گیا ہے، یہاں تک کہ ہڈیوں کے نشانات بھی نہیں ملتے۔ ہاں وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو دنیا میں ہماری اور آپ کی طرح زندگی گزار کر گیا ہے۔ دنیا میں وہ بھی کاروبار کرتا تھا، بڑے بڑے بلڈنگیں اس کے پاس میں بھی تھی، بڑے بڑے سرمایہ کے مالک وہ بھی تھے، جائیداد ان کے پاس میں بھی تھی، روپے پیسے کے انباب اس کے پاس میں بھی تھے، لیکن زمین نے جب اپنا کام کیا ہے تو اس کی ہڈیوں کو تہوبالا کیا، اسے تباہ و برباد کیا، یہاں تک کہ قبر کے نشانات تک مٹا دیے۔ لیکن وہی ایک بندہ جس نے اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کیا، دنیا میں نیک عمل کر کے گیا ہے، زیر زمین گیا تو زیر زمین یوں نہیں گیا بلکہ زیر زمین جانے کے بعد اللہ نے مقام اس کا اتنا بلند کیا کہ 1000 سال پہلے بھی اگر وہ دنیا سے گیا ہے، دنیا سے رخصت ہوا ہے، آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے، تو دنیا آج بھی یہ کہتی ہے کہ وہ جو دنیا سے گیا ہے اللہ کا محبوب بندہ بن کے گیا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ زمین کے نیچے جانے کے بعد اللہ نے اس کے مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ ہر سنی مومن یہی کہتا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ غوث اعظم آج سے 1000 سال پہلے زیر زمین دفن ضرور ہوئے، دنیا میں ایسے نام روشن ہے، ایسے وہ زندہ ہیں، مانو ایسا محسوس ہوتا ہے غوث اعظم کل ہی دنیا سے گئے ہیں۔ دنیا ایسے یاد کرتی ہے جیسا کہ غوث اعظم دنیا میں ابھی بھی موجود ہو، ہمارے گھروں میں موجود ہو، ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، محبوب سبحانی کانفرنس زندہ باد۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم پیدا ہونے کے ساتھ جن کی ولایت مشہور ہے، ولادت سے لے کر قیامت تک جن کی ولایت کا سکہ چلے گا، ولادت سے لے کر قیامت تک جن کی ولایت کا سکہ چلتا رہے گا، وہ ذات غوث اعظم کی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کے شہنشاہ ہیں، ولیوں کے سلطان ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولادت مبارک سے پہلے بھی اولیاء کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا تھا۔ تمام اولیاء زمانہ اپنے مجلسوں میں ان کا تذکرہ کرتے تھے، اور یہ کوئی ایسی ویسی
विलायत नहीं थी, बल्कि गौसे आजम की विलायत ऐसी कि अपने वक्त के बड़े बड़े औलिया आपकी विलायत से पहले आपका नाम लेकर के जिक्र करते थे, आपका नाम लेकर अपने मुरीदों को बताते थे और ये कहते थे कि एक अजीमुशान बच्चा पैदा होगा, रसूलुल्लाह के आल से होगा, पैदा वो जीलान में होगा, बगदाद में जब वो आएगा उसको मरकज बनाएगा तो बगदाद के जामे मस्जिद के मेंबर पर बैठ कर कहेगा कदमी हादी अला रकबत कुल्ली बनी जिल्ला। जब ये ऐलान करेगा तो तमाम औलियाए ज़माना अपनी गर्दनों को झुका कर कहेंगे या शेख आपका कदम न सिर्फ मेरे गर्दन पर है बल्कि मेरी आंखों पर भी है और मेरे सर पर भी है। और ये कोई आम फहम हवाले नहीं है। गौसे आजम की सीरत पर जितनी किताबें लिखी गई किसी वली की सीरत पे उतनी किताबें नहीं लिखी गई, लेकिन जो मोतबर किताबें हैं, मोतबर किताबों में बहजतुल असरार है, कलाइदुल जवाहिर है, औलिया के तारीख में मकाशिफतुल औलिया है, ये ऐसी किताबें हैं, ज़ुबदतुल अबरार है, ये ऐसी किताबें हैं जिन किताबों के हवाले से और ये बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की लिखी हुई किताबें हैं जिन्होंने गौसे आजम की सीरत को जिक्र किया है। एक बुजुर्ग का नाम आता है जो गौसे आजम के जमाने से विलादत से बहुत पहले के बुजुर्ग हैं, नाम उनका शेख अबू अहमद अब्दुल्ला बिन अली बिन मूसा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने अपने मुरीदों के सामने ऐलान किया, मजमे आम में ऐलान किया, ए लोगों, इराक की सरजमीन पर 8 औताद होंगे। कहा कि नाम भी बता देता हूं। नाम उन्होंने बताया, कहा कि एक वक्त आएगा कि हजरत मारूफ करखी तशरीफ लाएंगे, एक वक्त आएगा इमाम अहमद इब्न हम्बल तशरीफ लाएंगे, एक वक्त आएगा हजरत बेशर हाफी तशरीफ लाएंगे, एक वक्त आएगा हजरत मंसूर बिन अम्मार तशरीफ लाएंगे, एक वक्त आएगा हजरत सिर्री सक्ती तशरीफ लाएंगे, एक वक्त आएगा हजरत जुनैद बगदादी तशरीफ लाएंगे, एक वक्त आएगा हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तशरीफ लाएंगे, एक वक्त आएगा शेख अब्दुल कादिर तशरीफ लाएंगे। इन तमाम औलिया का नाम लेकर इनकी विलादत से पहले एक बुजुर्ग जिक्र फरमा रहे हैं। आपके सामने बैठे हुए लोगों ने कहा कि हुजूर आपने जो अखीर में जिसका नाम लिया है शेख अब्दुल कादिर, आप क्या उनके बारे में कुछ वजाहत देंगे? फरमाते हाँ हाँ, उनकी वजाहत ये है, उनकी शान इतनी बुलंद होगी, इतनी बुलंद होगी, जब वो पैदा होगा तो पैदा तो वो जिलान में होगा लेकिन बगदाद को अपना मरकज बनाएगा, और जब बगदाद में आएगा एक जमाना ऐसा आएगा तमाम औलिया उनकी विलायत का खुतबा पढ़ेंगे और ऐसा खुतबा पढ़ेंगे कि वो बगदाद के मेंबर पे चढ़ के ऐलान करेगा मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पे है। फिर क्या होगा? तमाम औलिया जमाना अपनी गर्दनों को झुकाकर उनकी बात को मानेंगे। इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए तो कहा सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मरते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने आपकी विलादत से पहले भी, आपकी विलादत से बाद भी, क्योंकि वक्त शॉर्ट है इसलिए उन तमाम बुजुर्गों का नाम मैं नहीं गिनवाऊंगा। हजरत जुनैद बगदादी ने अपने मुरीदों के सामने ऐलान किया था और वही जुनैद बगदादी है। जब बुजुर्गों पे जो एक कैफियत तारी होती है कुछ देर तक आप पे वो कैफियत तारी रही, जब उससे बाहर आए तो आने के बाद उन्होंने अपने मुरीदों को मुखातब करके कहा, ए लोगों, मेरे बाद एक ऐसा बच्चा दुनिया में जन्म लेगा, एक ऐसा बच्चा धरती पे आएगा जो रसूलुल्लाह के आल से होगा, वो जिलान में तो पैदा होगा, बगदाद को अपना मरकज बनाएगा। और उन्होंने नाम अब्दुल कादिर नहीं बल्कि नाम उन्होंने मुहीयुद्दीन बताया। ये जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने उन्होंने कहा कि उसका नाम मुहीयुद्दीन होगा। और फिर तमाम औलियाए ज़माना ने गौसे आजम के बारे में कहा कि एक वक्त आएगा कि ये ऐलान करेगा बगदाद से कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पे है। आखिर बुजुर्ग का मैं जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूंगा। हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की विलादत हो गई। जब आप पढ़ने के लिए जाते थे, आपके पढ़ाने वाले जितने असातिज़ा थे, जितने उस्ताद थे और जो मनसब में विलायत के फाइज थे, तमाम के तमाम औलिया ये जानते थे कि आने वाला बच्चा ये कोई आम फहम बच्चा नहीं है,
कामिल होगा तो सिर्फ वली नहीं होगा बल्कि तमाम वलियों का सुल्तान होगा, तमाम वलियों का सरताज होगा। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ज़माने तालिब इल्म भी है, चंद दोस्तों के साथ में बगदाद के एक बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं, जिस बुजुर्ग का शोहरा था कि जब वो तकरीर करते हैं, जब वो वाज करते हैं तो हजारों का मजमा होता है उनकी तकरीर को सुनने के लिए, उनके वाज को सुनने के लिए। उनके दरसगाह में बैठने वाले हजारों लोग होते हैं। उनके साथियों ने कहा कि चलते हैं उस बुजुर्ग की बारगाह में, कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ फैज को हासिल करेंगे। गौसे आजम भी गए हैं, जाकर के बदमे में बैठा, बदमे में बैठे थे, बुजुर्ग तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर फरमाते फरमाते वो बुजुर्ग अचानक खामोश हुए। खामोश होने के बाद में इशारा किया कि वो जो बच्चा वहां बैठा हुआ है इसको खड़ा करो। जब मजमे में खड़ा किया गया, कहा कि उसको मजमे से बाहर कर दो। मजमे से बाहर कर दिया गया। गौसे आजम मजमे से बाहर कर दिए गए, लोग उसको देखते रहे। फिर गौसे आजम कुछ देर तक बाहर रहे, फिर मौका मिला, फिर जाकर के मजमे में किसी तरफ से बैठा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पर उस बुजुर्ग की तकरीर करते करते फिर निगाह पड़ी है। कहा कि इस बच्चे को उठाओ। ये फिर से आकर के बैठ गया। फिर गौसे आजम को हाथ पकड़ा और उसको उनको मजमे से बाहर किया गया। मजमे से बाहर जाने के बाद गौसे आजम ने इधर देखा, उधर देखा, फिर मौका मिला, फिर तीसरी जगह जाकर शिफ्ट हुए हैं। फिर उस बुजुर्ग ने देखा कि वो बच्चा फिर बैठ गया। अब की बार उन्होंने लोगों को मुखातब करके कहा कि लोगों, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे खड़ा करो, इसको मेरी बारगाह में लाओ, मेरे पास में लाओ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लाया गया। वो कौन बुजुर्ग थे? बुजुर्ग का नाम हजरत ताजुल आरिफीन शेख अबुल वफा मोहम्मद ताकेश रहमतुल्लाह तआला अलैह है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। करीब में बुलाने के बाद अपने मेंबर से नीचे उतरे, लोगों को मुखातब करके कहा, ऐ लोगों, क्या तुम ये समझते हो कि मैंने इसको इसलिए बाहर किया कि मैं इसको जलील करूंगा, मैं इसकी तौहीन करूंगा? नहीं नहीं, बल्कि मैंने इसको बाहर इसलिए किया है कि इसको पहचान लो, इसको जान लो, इसको पहचान करके इसको हतमी तौर पर जान लो, इसके चेहरे को पहचान लो, इसकी शराब को पहचान लो कि कौन बंदा है। ये आम फहम बंदा नहीं है, बल्कि मेरे बाद जिसकी विलायत का चर्चा होगा पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, जिनका लोग खुतबा पढ़ेंगे, ये वही है जिसको लोग गौसे आजम कहेंगे। नाम इनका अब्दुल कादिर है। ये वक्त आएगा इसी मिंबर पर बैठ करके ये ऐलान करेगा, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पे है। सीने से लगाया और कहा कि अब्दुल कादिर, तेरा जब वो वक्त आ जाए, जब तू उस मंजिल पे पहुंच जाए तो मुझे फरामोश नहीं करना, मुझे याद रखना, इसलिए कि मैं जानता हूं परवरदिगार आलम तुम्हें वो मकाम अता फरमाया है कि तमाम औलिया का सूरज जब तुलू होगा, एक जमाने के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरा सूरज जब तुलू होगा तो सुबह क़यामत तक तेरा सूरज चमकता रहेगा, चमकता रहेगा। इमाम अहले सुन्नत ने इसीलिए तो फरमाया कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मिलते हैं आंखें वह तलवा तेरा। ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को परवरदिगार आलम ने अपनी महबूबियत का दर्जा अता फरमाया था। अपनी बारगाह का ऐसा महबूब बंदा बनाया, ऐसा महबूब बंदा बनाया कि गौसे आजम उस मनसब पे फायज हुए। एक दिन ऐलान करते हैं, लोगों, मेरा कोई मुरीद अगर मशरिक में हो, मैं मगरिब में रहूं और मुझे अगर मदद के लिए पुकारे तो मैं वहीं से अपने मुरीदों की मदद कर दिया करता हूं। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की शान बुलंद आवाज से कही सुभान अल्लाह। लेकिन इतने बड़े वली हैं, वलियों के सुल्तान हैं, वलियों के सरताज हैं, वलियों के शहंशाह हैं, लेकिन रब का खौफ ऐसा है सीने में, रब की खशियत ऐसे सीने में कि हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, सहने काबा में मैंने गिलाफ काबा पकड़ के एक आदमी को देखा, अल्लाह का एक बंदा ज़ारो कतार रो रहा था, रब की बारगाह में फरियाद कर रहा था, मौला कल क़यामत के दिन अगर मेरे आमाल अच्छे नहीं हो, मौला अगर मेरे आमाल क़यामत में अच्छे न हुए, ए मेरे परवरदिगार, मुझे क़यामत में अंधा बना करके उठाना ताकि मैं अच्छे लोगों के सामने रुस्वा न हो जाऊं, मैं रसूलुल्लाह के सामने रुस्वा न हो जाऊं। अब जब लोग उनके रोने की आवाज को सुने, करीब गए। शेख सादी फरमाते हैं, मैं करीब जा करके जब उनसे नाम पूछने की कोशिश किया तो मालूम ये हुआ ये वही गौसे आज़म है, ये वही अब्दुल कादिर है जिनके विलायत का खुतबा पूरे औलियाए ज़माना पढ़ते हैं, लेकिन रब का खौफ इतना है सीने में कि रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मौला मेरे अमाल अगर
अच्छे नहीं हो तो क़यामत में अंधा बना करके उठाना। मेरे अहबाब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर हमने मजलिस सजाई है। सीरत गौसे आज़म भी अपनी जिंदगी में उतारो, इसलिए कि गौसे आज़म की सीरत अगर जिंदगी में नहीं आ पाई तो फिर ये मजलिस से सजाना किसी काम का नहीं होगा। अगर अपने गौसे आज़म की सीरतों के एक पहलू को भी अपने अगर जिंदगी में उतार लिया, परवरदिगार आलम हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, कल क़यामत में भी सुरखरू होने का मौका देगा। गौसे आज़म इतने बड़े वली है, पैदाइशी वली है, लेकिन उसके बावजूद इल्म का ये आलम है, तालीम हासिल करने का ये आलम है कि जीलान से बगदाद का सफर गौसे आज़म ने किया है, बरसहा बरस तक इल्म हासिल किया है, और इल्म हासिल करने के बाद खुद गौसे आज़म फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म हासिल करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुबियत का दर्जा अता फरमाया। ये गौसे आज़म की शान है। ए लोगों, क़यामत के खौफ से गौसे आज़म का कांपना एक तरफ, गौसे आज़म का इल्म एक तरफ, आपकी विलायत का शोहरा एक तरफ, क्योंकि कुरान करीम हमको रास्ता दिखाता है, कुरान करीम हमें राह बताता है, कुरान करीम हमें पैगाम देता है, लेकिन जो उस पर अमल करता है वो साहिब तकवा होता है। जो साहिब तकवा होता है, परवरदिगार आलम उसे महबूबियत का दर्जा अता फरमाता है। और क्यों न हो, रब्बे कायनात के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जब परवरदिगार आलम किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अभी को फरमाता है, ए जिब्रील तेरा रब फला बंदे से मोहब्बत करता है तो भी उससे मोहब्बत कर। हजरत जिब्रील अभी उससे मोहब्बत करते हैं। फिर जिब्रील अभी को हुक्म होता है, अहले आसमान में ऐलान कर दो, परवरदिगार फला बंदे से मोहब्बत करता है तो भी उससे मोहब्बत कर। आसमान के तमाम मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर जिब्रील अभी को हुक्म होता है, जिब्रील मेरे इस महबूब बंदे के मकबूलियत को और इसकी महबूबियत को रूए जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के सीने में, तमाम लोगों के सीने में, तमाम मखलूक के सीने में बिठा दो। जब परवरदिगार आलम किसी महबूब बंदे की महबूबियत और मकबूलियत को जब अपने मखलूक के सीने में बसाता है तो फिर बंदा दुनिया के किसी गोशे में भी पैदा होता है, दुनिया के किसी कोने में होता है, मखलूक खुदा उसके इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आती है। और हद तो यह है कि 1000 साल नहीं बल्कि हजारों साल गुजर जाए, सुबह क़यामत तक अल्लाह के नेक बंदे जिंदा रहते हैं, परवरदिगार आलम का नाम जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, महबूबे सुभानी कॉन्फ्रेंस। मोहतरम सामईन हाज़रीन, चूंकि हम मुसलमान हैं और हमारे यहाँ तसव्वुर आखिरत ये ऐसा अकीदा है कि जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। हम में और दूसरों में फर्क ही यही है कि हमारे यहाँ तसव्वुर आखिरत है, और तसव्वुर आखिरत के साथ एक बंदा जब अपनी जिंदगी को गुजारता है तब अल्लाह उसे महबूबियत का दर्जा अता फरमाता है। और क्यों न हो, कुरान करीम ने अपने बंदों के, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों की हिदायत रहनुमाई के लिए, बल्कि उसके सीने में खौफ पैदा करने के लिए जगह जगह कुरान करीम में इसका जिक्र किया। कुरान करीम की आयत करीमा है, रब का इरशाद होता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। रब का इरशाद होता है, लोगों डरो अपने रब से, क्योंकि क़यामत का दिन दिल चीर देने वाला दिन होगा, क़यामत का दिन इंतहाई दर्दनाक दिन होगा। बल्कि जब क़यामत का दिन आएगा तो दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे से अलग हो जाएगी। वो इतना खतरनाक दिन होगा कि एक औरत जिसके पेट में बच्चा पल रहा होगा, डर और खौफ की वजह से क़यामत में उसके पेट का बच्चा साकित हो जाएगा। ये क़यामत का दिन होगा। रब्बे कायनात ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, आगे ये इरशाद फरमाता है कि ये तमाम तर चीजें क्यों होगी, इसलिए कि रब का खौफ, रब का डर, रब का खौफ बंदों के अंदर इस कदर बैठा हुआ होगा क़यामत में कि एक बंदा थर थर कांप रहा होगा। कुरान करीम के मुतअद्दिद आयात हमको ये पैगाम देते हैं, ऐ लोगों दुनिया में जब तक रहो अच्छे बन करके रहो, अच्छे आमाल के साथ में जिंदगी गुजारो, वरना कल क़यामत के दिन तो बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, दिफा भी नहीं कर सकोगे, बात भी नहीं कर सकोगे, अपना डिफेंस भी नहीं कर सकोगे, और तुम्हें
तुम्हारे तमाम अमाल का बदला एक एक करके देना होगा। वहां तो रब्बे कायनात की बारगाह में जब बंदा खड़ा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि दुनिया की तरह कहीं जाकर के घुस गए, नेकों के सफ में नेक बन गए। कुरान करीम कल क़यामत के दिन ये ऐलान करता है कि ऐसे बंदों के बारे में कुरान कहता है इन्नका अंतल अजीजुल करीम। कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम बदअमालियों का बदला बंदे को चखाएगा और कहेगा दुनिया में बड़ा मुअज़्ज़ज़ बनता था, बड़ा मुकर्रम बनता था, बड़ा इज्जतदार बनता था, आज उन तमाम बुरे अमाल का बदला चख लो। बल्कि कुरान करीम में तो यहाँ तक आया कल क़यामत के दिन मुनादी ऐलान कर रहा होगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों अपनी जमात को अलग कर ले। आज नेकों की जमात अलग होगी, बुरों की जमात अलग होगी, शराबियों की जमात अलग होगी, जुआरियों की जमात अलग होगी, बदकारों की जमात अलग होगी, नेकोकारों की जमात अलग होगी। तमाम जमातें क़यामत में अलग अलग कर दी जाएगी। उसके बाद में बंदा जब रब की बारगाह में आएगा, रब का कुरान कहता है अल यौमा नख़तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर तो तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारी ज़बान खामोश कर दी जाएगी, तुम्हारा हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारे आज़ाए जवारे, तुम्हारे करतूतों की खबर तेरे रब को दे रहे होंगे। वैसे वक्त में क्या बनेगा जहां पर बंदे की तमाम तर चीजें, तमाम तर ताकतें, तमाम कुव्वतें, तमाम दौलतें दम तोड़ देंगी। वहां बंदा होगा, बंदे का रब होगा, उसके अमाल होंगे। रब्बे कायनात का वाज़ेह तौर पर इरशाद है कुरान करीम में अल यौमा नख़तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। दूसरी जगह परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया यौमा तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। कल क़यामत के दिन तुम्हारे तमाम तर राज खोल करके रख दिए जाएंगे। वहां कोई तुम्हारा हामी व मददगार नहीं होगा, बल्कि वहां तू होगा, तेरे अमाल होंगे, तेरा रब होगा और एक एक अमल का हिसाब दे करके तो अपने रब की बारगाह से जन्नत या जहन्नम के बारे में अपना रास्ता तय करवा लेगा। मेरे अहबाब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ गौसे आज़म का जिक्र अगर हम करते हैं तो गौसे आज़म की सीरत भी हमारी जिंदगी में उतरनी चाहिए। गौसे आज़म के किरदार और अमल भी हमारे घर में आनी चाहिए। हमारे बच्चों में गौसे आज़म का तज़किरा होना चाहिए, गौसे आज़म के बचपने का तज़किरा होना चाहिए, गौसे आज़म के इल्म का तज़किरा होना चाहिए, गौसे आज़म के ज़ुहद व तक़वा का तज़किरा होना चाहिए कि गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े वली हैं, लेकिन आलम ये है कि 40 साल तक ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ के अपने रब को राज़ी करने की कोशिशें करते हैं, जो कि वलियों का सुल्तान है, वलियों के सरताज है, वलियों के शहंशाह है। लेकिन इबादत का ये आलम है कि रात रात भर जग करके एक एक पांव पर खड़े होकर के पूरा कुरान खत्म करने वाला गौसे आज़म रब को राज़ी करने के लिए रात रात भर जग करके अपने रब की इबादतें करता है। गौसे आज़म की जिंदगी से हमको ये पैगाम मिलता है अगर तू कामयाब होना चाहता है, अगर तू कामरान होना चाहता है तो इल्म पढ़ और इतना पढ़ कि परवरदिगार आलम इल्म की बरकतों से तुम्हें दुनिया भी अता फरमाए, तुम्हें आखिरत भी अता फरमाए, तो दुनिया में भी किसी का मोहताज न रह जाए और आखिरत में भी तो किसी का मोहताज न रह जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको सबों को गौसे आज़म के फयूज़ व बरक़ात अता फरमाए, गौसे आज़म की सीरत तय्यबा पे हमको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम के परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, वली अल्लाह के मुत्तकी ही बनते होते हैं। जो मुत्तकी नहीं होगा वो वली नहीं हो सकता, जो आलिम नहीं होगा वो वली नहीं हो सकता, बल्कि वली होने के लिए तकवा भी शर्त है और फिर इल्म का होना भी जरूरी है। बगैर इल्म के न आज तक कोई वली हो सका है, न सुबह क़यामत तक कोई वली हो सकेगा। परवरदिगार आलम जब किसी को मनसब विलायत अता फरमाता है तो अगर वो पहले से पड़ा हुआ नहीं होता है तो किसी न किसी जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत या तो डायरेक्ट उसे इल्म अता फरमाते वहवी तरीके से, या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी न किसी जरिए से पहले उसे इल्म अता फरमाता है, फिर परवरदिगार उसे मनसब विलायत अता फरमाता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के बैठने को और इस मकबूल महफिल को कबूल फरमाकर अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, गौसे आज़म के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। हम तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं, खुसूसियत के साथ यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ के जिम्मेदारान, यहाँ के उलमा, तमाम के हम शुक्रगुजार हैं कि आपके सामने कुछ बातें मैंने इस नीयत के साथ में रखी कि काश कि हम में से कोई अगर इस पे अमल कर ले तो इसका फायदा आपको भी होगा
ہوگا، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہی کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔